Hello friends, welcome back. I am Name Singh, physics lecturer. Today we will discuss about the topic characteristics of vectors. As we know, symbolically vector is represented by a bold-faced letter or a light letter with an arrowhead over it, such as the force is a vector quantity and it is represented by the bold-faced letter F. बोल्ड फेस मीन्स कंप्यूटर में हमने देखा है अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड। जो कंप्यूटर में बोल्ड होता है ना, उसी बोल्ड की बात कर रहे हैं हम। उस बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, या जो लाइट लेटर्स होते हैं उनके ऊपर हमने एरो लगा देते हैं। सिंबॉलिकली वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द बोल्ड फेस लेटर और ए लाइट लेटर with arrowhead on it. Is that clear? Now the first property of vector is equality of vectors. The first characteristics of vector is equality of vectors. Two vectors of the same physical quantities are said to be equal if they have the same magnitude and same direction. Here are two vectors, A vector and B vector. Here the magnitude of both vectors is same and their direction also same. So A vector and B vector are said to be equal vectors. And another example, this is vector P and this is the vector Q. Here vector P and vector Q are also equal vectors. These are the examples of equal vectors. You can take a screenshot. And the second characteristics of vector is negative vector. Negative of a vector is another vector having the same magnitude but opposite direction. Here let this is the vector A and this is the vector B. Here as you can see, vector A and vector B have the same magnitude but they are opposite in direction with each other. So vector A and vector B. Vector B is the negative of vector A. Let this is the vector P and this is the vector Q, having the same magnitude but opposite in direction. So these vectors are the examples of negative vectors. Property of vector is unit vectors or unity of a vectors. A vector whose magnitude is unity and is drawn in the direction of the given vector is called a unit vector. Actually, a unit vector represents the direction of the given vector. Since as we know, every vector expressed in the form of magnitude and direction. So we have A vector is equal to the magnitude of A vector and A cap vector. Here A cap vector is the unit vector. So A cap vector equal to A vector upon mod of or modulus of vector A. Here A cap is the unit vector. And the fourth characteristics of vector is zero vector. Zero vector is a vector whose magnitude is zero and it possesses an arbitrary direction. मीन्स जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है लेकिन इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन होती है। यहाँ पे जीरो वेक्टर
और जो ऑर्डिनरी जीरो होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जीरो वेक्टर की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जबकि ऑर्डिनरी जो जीरो होता है उसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। और हम जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज अ नल वेक्टर। It is also called null vector. Means zero vector is called null vector. It is obtained by the adding a vector to its negative vector. नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है? किसी भी वेक्टर में, कहें कि किसी भी गिवन वेक्टर में उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड करने पर हमें नल वेक्टर और जीरो वेक्टर प्राप्त होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जीरो वेक्टर। द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन जीरो इज एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट। मीन्स अगर किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो वेक्टर को उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उस वेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसकी क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो अनचेंज रहता है। एग्जाम्पल, व्हेन जीरो वेक्टर इज एडेड टू वेक्टर ए इट गिव्स द वेक्टर ए, एंड व्हेन जीरो वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए इट गिव्स आल्सो वेक्टर ए। ये नोट दैट जब वेक्टर ए में जीरो वेक्टर को ऐड किया तो भी वेक्टर ए आया, और जब ए वेक्टर में से जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया गया, घटाया गया, तब भी ए वेक्टर आया। मीन्स इसके मैग्नीट्यूड पर या इस वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये अनचेंज रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर एन और ए वेक्टर ए बाई ए जीरो वेक्टर यील्ड्स जीरो। कहेंगे जब किसी भी नंबर में हम जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी जीरो आता है, या किसी भी गिवन वेक्टर में जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट जीरो आता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर इज द डिफरेंसेस ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज अ जीरो वेक्टर। if a vector is equal to the b vector, then the difference of a vector and b vector is the zero vector or null vector। मतलब अगर कोई भी इक्वल वेक्टर्स हैं तब उनका डिफरेंस जीरो वेक्टर आएगा। Now we talk about the examples of zero vectors or null। Here are some examples of zero vector। A body moving with uniform velocity has zero acceleration vector। Here note that the object is moving with a uniform velocity, means ऑब्जेक्ट एक समान वेग से मूव कर रहा है, मीन्स v1 इक्वल टू v2, v1 इक्वल टू v2 है। सो change in their velocity equal to 0 और 0 vector। As we know, the rate of change of velocity is called acceleration। Here acceleration, change in velocity is 0, so acceleration vector a vector also 0 vector। यहाँ इस तरह समझिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एक समान वेग से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, और क्योंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसे हम जीरो वेक्टर और नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर। एंड द सेकंड एग्जांपल इज व्हेन ए बॉडी रिटर्न्स टू द सेम इनिशियल पोजीशन देन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हियर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन ए पर है, यहां से ये बी तक जाता है और बी से वापस ए पर ही आ जाता है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
वेक्टर एस इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी है, इट मींस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 वेक्टर होगा। एंड द थर्ड एग्जांपल इज फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ 0 वेक्टर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पर है, अब ये मूव ही नहीं किया है, इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये भी 0 वेक्टर। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेट करने की, तो मैं अपनी वीडियोज में धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँ, पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।